Hello, and welcome to another episode of Mindful by Dr. Taruna, the space where medicine meets meaning and science meets soul. Today's guest is someone who truly embodies surgical precision, academic brilliance, and a deep, quiet compassion that's hard to forget. Dr. Alok Dubey. He's a senior consultant in surgical gastroenterology at Yatharth Hospital with a stellar academic journey, an MBBS from Kasturba Medical College, an MS in General Surgery from NRS Medical College, Kolkata, and an MCH in Surgical Gastroenterology and Bariatric Surgery from Madras Medical College. He also holds an FRCS and has completed his PCBR certification. He specializes in advanced laparoscopic and robotic surgeries, GI cancers, HPB procedures, bariatric surgery, and endoscopy. But what truly sets him apart is the way he combines clinical clarity with calm, grounded communication, something I experienced firsthand. You see, I first met Dr. Dubey not as a podcast host, but as a family member, a daughter in law, navigating confusion and concern. My father in law had undergone a routine hernia surgery, and everything initially seemed fine. But about 2 weeks later, just after his stitches were removed, he suddenly began experiencing vomiting, indigestion, and inability to pass stool or gas. We thought it might be just constipation, maybe due to antibiotics or the sedentary recovery, and even the dietary changes. Our minds lean towards something simple, impacted stool, inactivity, or just temporary gut slowdown. But the doctors insisted it was intestinal obstruction, a serious, potentially life threatening condition. And naturally, we were hesitant. It just didn't seem that urgent. We kept hoping it would resolve on its own, that with movement, fiber, and fluids, it would get better. And in the middle of this emotional and medical tug of war, Dr. Alok Dubey stepped in. He didn't pressure us and he didn't even brush off our doubts. Instead, he took the time to explain exactly what was happening, the role of adhesions, how they can form after surgery, and why this was not something that we could wait out. He answered every question patiently, precisely, and most importantly, without any agenda. That clarity, that reassurance made all the difference. And the surgery he performed, which we were once scared to consent to, turned out to be absolutely necessary and thankfully successful also. So today's conversation is not just about surgical technique, it's about empathy, discernment, and emotional intelligence it takes to guide the patients and families when they are caught between doubt and fear. Dr. Dubey is also an accomplished academician with research spanning topics like VEGF biomarkers in gastric cancer, rare conditions like dorsal agenesis of pancreas, and more, and published and presented at platforms like IASGCon, APH, PBA, and TNSGEA, where he has been awarded titles like Best Paper in the year 2023. He's a surgeon, a scholar, and someone I have seen walk the delicate line between clinical urgency and human compassion with grace. So let's dive into his world of scalpel and science, but also softness in patience, here on Mindful. Welcome to the show, Dr. Dubey. We are so glad to have you here. Acha, from all the subjects, what drew your attention to stomach, intestine, and pancreas? It was not a choice per se. It was just a group of friends. When I was doing my general surgery, a group of friends, we were sitting and talking. One of my very close friend, he said he wanted to do GI surgery. He was my senior also. And then I thought, okay, kuch to karna hai, I'll also do GI surgery. Do you regret that decision now? No, not at all. Okay. From Manipal to Madras, what shaped your journey and how did it change you as a doctor and as a human being? It was a very good experience. Going to different states, understanding different type of people, learning different languages was a boon for me. And understanding people, how they think, especially with me being brought up in North India throughout, and then going or doing all my studies in South India and eastern part of India. So yeah, the journey was nice and it was a very different experience altogether. Were you the serious
मेडिकल टॉपर काइंड ऑफ अ पर्सन या लास्ट मिनट नोट्स फटाफट जो पढ़ के काम चलता है वैसे वाला था? हाउ वाज योर स्टूडेंट लाइफ? Below average, par, that's all. नहीं, कॉलेज की या इधर की, स्कूल की बता रहे हो, कॉलेज की? Everywhere. अच्छा, ओके. एंड हाउ वाज योर चाइल्डहुड लाइक? मतलब कमिंग फ्रॉम आई थिंक यू कम फ्रॉम वाराणसी, Yes. एंड उधर उतना फैसिलिटीज़ नहीं है जैसे सिटी में आपको आकाश इंस्टीट्यूट, कोचिंग और सब फैसिलिटी है. तो हाउ, व्हाट वाज योर प्रिपरेशन टू गेट इनटू द मेडिकल स्कूल? एंड नो, ऐसा नहीं है कि फैसिलिटी नहीं है, ऑब्वियसली फैसिलिटीज़ हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं, कोचिंग, schools, everything is there. So I did my schooling from army school and then Sant Atulanand from Varanasi, and then later on there is a coaching called JRS. I joined that coaching center and then I gave my exams. आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कराया? कितने अटेम्प्ट्स लगे? No, I took a drop of 1 year. Okay, okay. What does the typical day in the OT look like? Is it like Grey Anatomy vibes, high drama, or like just routine? No, it's routine. Like for me, it's routine. Just go there. You have a patient. You already have informed the staff. क्या करना है, क्या नहीं करना है. Everything is calm, quiet, happy. Okay. Have you ever had that wow moment during surgery ki unforgettable kuch? This surgery of coloplasty for the first time, that was also a wow moment for me because I had never seen that surgery before. That I saw only once I went to Madras Medical College for the first time. What is coloplasty? Coloplasty surgery is when a patient comes with esophageal stricture, like it is the blockage of the esophagus because of acid poisoning. Oh, okay. Yeah. So then you do a surgery where you take colon, the large intestine, and you attach it to the esophagus so the patient can eat now normally. Okay. Yeah. Looking at postmortems is a different thing, but when you operate on a live body, when you must have first time put your knife on a living body, Yeah. how was the experience like? The first time? Yeah, the first time when I was doing, I wouldn't say that there was any kind of hesitation or fear. It is not like that because आप जब फर्स्ट टाइम रखते हो उसके पहले तो आप 100 प्रोसीजर्स देख चुके होते हो. Okay. Then only you put knife for the first time. So when I put my knife for the first time, it happens that you don't have a idea कि कितना प्रेशर लगाना है, कितना नहीं लगाना है. Sometimes you cut deep, sometimes you don't understand कितना प्रेशर लगाना है किसी चीज़ को ओपन करते समय. So yeah, that was the glitch. But apart from that कोई डर या कुछ ऐसा नहीं था. हाथ नहीं कांपे आपके? नहीं. लोग कहते हैं ना कि पहली बार OT में जाते हैं तो बेहोश हो जाते हैं. ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ कभी आपके साथ? नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुआ, बट या आई हैव सीन जो व्हेन आई वाज डूइंग जनरल सर्जरी तो कभी कभार इंटर्न्स होते हैं, कुछ इंटर्न्स हु आर वेरी ससेप्टेबल टू ब्लड एंड ट्रॉमा, तो उनको आ जाता है वेसोवेगल. यस. आई थिंक योर फादर वाज इन द पुलिस. यस. उस चीज़ ने क्या आपको हेल्प करा टू बी स्ट्रॉन्ग एंड लुक एट अ सर्जरी इन अ डिफरेंट मैनर? आई डोंट थिंक सो. मतलब आई कैन नॉट से वेदर दैट हेल्प्ड और नॉट, बट लुकिंग एट दीज थिंग्स एज अ सर्जन आई वुड से कि आपकी जब व्हेन यू चूज सर्जरी, जब आप जाते हो, द वर्कलोड, द आइडिया ऑफ डूइंग सर्जरी, when you see surgeries so much, there is no fear. और ऐसा नहीं होता कि आपको बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है. मुझे तो लगता है कि it is more of a responsibility that you have कि ठीक है, अगर आप सर्जन बन रहे हो तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है that ये पेशेंट आया है, इसको आपने ठीक करना है. That is what brings fear into you कि नहीं, अगर मैंने किया है तो मुझे तो ठीक करना है. Have that motivation and to have that this thing कि हाँ मुझे इसको ठीक करना है. नॉर्मली लोग कोल्ड और डिस्टेंट की तरह देखते हैं कि, तो हाउ डू यू ब्रिंग एम्पैथी इनटू सच हाई स्टेक प्रोफेशन? I would not say कि surgeons are cold.
I would just say they are blunt. They are very blunt. क्योंकि the idea is if someone is thinking about life in a very practical way, I think it would be a surgeon. So the empathy comes from the fact that whatever is being understood by a surgeon about life, he brings that into the picture in front of you. कि आपके पास ऑप्शन है लाइफ का होना या ना होना. Now choose what you want to choose. तो यू मस्ट हैव सीन यू नो नंबर ऑफ पेशेंट्स जिनको बहुत डर लगता होगा सर्जरी के पहले या उनके अटेंडेंस को डर लगता होगा. हाउ डू यू डील सच सिचुएशंस? बिल्कुल, मतलब डर तो लगता है, सबको ही डर लगता है. बिकॉज सर्जरी फॉर अ नॉर्मल पर्सन टू अंडरस्टैंड इट इज़ ऑलवेज लाइक ओ माई गॉड क्या हो जाएगा, वापस आऊँगा नहीं नहीं आऊँगा. आऊँगा. ऊपर से ये भी होता है कि लोग सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि लोग सुने रहते हैं अरे उसके पड़ोस में उसकी सर्जरी हुई थी वो मर गया, उसके पड़ोस में उसकी सर्जरी हुई थी मर गया. सो पीपल हैव दैट मेंटल आइडिया कि यार सर्जरी का मतलब यार बहुत बुरी Right. चांस है, मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. राइट. सो टू मेक देम अंडरस्टैंड कि देखो ये ऐसा सिनेरियो नहीं है, वैसा सिनेरियो नहीं है. हाँ ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेशंस तो हो ही सकते हैं, बट ओवरऑल सर्जरी इज सेफ. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. इन गुड हैंड्स इट इज ऑलवेज सेफ. नॉर्मली पीपल हैव अ टेंडेंसी टू थिंक अबाउट ऑल द थिंग्स, क्या क्या गलत हो सकता है इस सर्जरी में. सो हाउ डू यू नेविगेट थ्रू दैट कॉन्वर्जेशन कि मेक देम थिंक कि क्या क्या अच्छा हो सकता है इस सर्जरी के बाद में. नॉर्मली दे थिंक ऑफ ऑल द नेगेटिव आउटकम्स दैट आर पॉसिबल. सो हाउ डू यू नेविगेट दैट सिचुएशन? आई डोंट पर्सनली आई डोंट टेल देम क्या क्या अच्छा हो सकता है सर्जरी में. फॉर मी इट इज़ लाइक मी as a surgeon, I have some knowledge about the human body and about the pathological problem or the problem patient is having. The attender or the patient doesn't. He doesn't know anything. My idea is कि मैं आपको बता देता हूँ सब कुछ कि आपको ये प्रॉब्लम है, ये ऐसे ऐसे है, इसका ये इलाज होता है, इस इलाज में ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, होने के चांसेस होते हैं जितने भी हैं, एंड द डिसीजन इज योर्स. The decision is always from the patient side. Yeah. आप अपने प्रोफेशन में रोज़ लाइफ एंड डेथ देखते हो, है ना. बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते होंगे जो बच नहीं पाते होंगे, बहुत सारे ऐसे होते होंगे जो ठीक हो जाते होंगे. हाउ डू यू कीप योरसेल्फ ग्राउंडेड? इट्स इमोशनली सो टैक्सिंग. Yeah, emotionally it is taxing, but not always, because it was a big problem when I was doing surgery, when I started my surgical journey. At that point of time, हाँ कभी किसी का सर्जरी किया और वो पेशेंट एक्सपायर कर गया, तो दैट वाज अ ट्रॉमा कि बहुत दिन तक जैसे सपने आना एटसेट्रा एटसेट्रा ऐसा हुआ था एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. बट लेटर ऑन यू गेट यूज टू इट. You understand the fact कि हाँ ठीक है, there is a chance this patient will survive or he will not survive. Most of the times when surgery is planned and everything is fine, then the chances of mortality are very low, very very low. So at that point of time कोई issue नहीं होता है. But हाँ emergency में कभी कुछ ऐसा हो गया, you tried your best but still you couldn't save the patient. तो the journey is such that surgical journey is such that कि you always look for the next person कि ठीक है चलो ये नहीं हुआ, we did whatever we could. अपनी तरफ से तो हम पूरा ही करते हैं, we did whatever we could. अब नहीं हो पाए, okay fine, we will do something better in the next one. That's how we console ourselves. प्लस आप बहुत सारे कैंसर के केसेस में भी सर्जरी करते हो विच आर यू नो क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड इफ वी लुक Yes. एट देम. तो ऐसे सर्जरीज में क्या प्रोग्नोसिस रहता है? See, it's a prognosis ऐसे बता पाना बहुत मुश्किल है. See, cancer as such has grave prognosis. Then again depending on cancer कहाँ का है, बॉडी में कितना फैल चुका है, whether it is operable or not. क्योंकि किसी भी कैंसर का, एक दो कैंसर्स को छोड़ के किसी भी कैंसर का प्राइमरी ट्रीटमेंट तो सर्जरी होता है. इफ देर इज एनी चांस ऑफ क्योर it can be achieved via surgery. Okay. So but then again it depends on the type of cancer, कहाँ का है, कैसा है, whether it is operable, not operable.
एंड मोर देन दैट कैंसर की स्टेजिंग क्या है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द स्टेजिंग. पेशेंट का सर्वाइवल कितना होगा, कैसा होगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्टेजिंग. रात को कभी आपको 2 बजे कॉल आया फॉर सर्जरी एंड डिसीजन टू ऑपरेट, आपको नींद नहीं आती, रात को 2 बजे उठ के आपको कोई सर्जरी के लिए बुला लेता है? नहीं, नींद आती है, 2 बजे तो सो ही रहे होते हैं, बट देन वंस कभी अगर कोई कॉल आया कि रात में 2 बजे सर्जरी है, इमरजेंसी है, सर्जरी है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तो फिर तुरंत यू जस्ट रश. उस टाइम पे तो इट इज़ मोर ऑफ एन एड्रेनलिन रश कि भाई जल्दी जाना है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, आउटकम्स कहीं साउथ ना हो जाए. या How do you make up for your sleep then? Does it not affect your health and efficiency if repeatedly you have to go on late night calls? Late night calls now, though, it has reduced a lot. Yeah, but yeah, during the training period when I was in general surgery or I was in doing my MCH, that time the maximum time you are awake only. So the training period is so, like, it is made in such a way that कि most of the time आप रात में जागते ही रहते हो. So then it becomes a habit. आपको नींद जब आती है, जैसे आती है, बस आप पूरी कर लेते हो. It is more of a, you know, doing what is necessary, bare minimum, कि आपको इतनी नींद की ज़रूरत है, आप जब मिले ले लो. But now it is not like that. अभी तो emergencies आती हैं, जाते हैं, but they are less. Okay. एक सोल्जर जो वॉर फ्रंट पे जाके लड़ता है, उसके पास बहुत सारी स्टोरीज होती हैं अपने वॉर की. आई एम श्योर एज अ डॉक्टर इट्स अ वॉर बिटवीन लाइफ एंड डेथ एवरी डे एंड यू विल हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज. तो कोई अपनी 2 AM सर्जरी की स्टोरी बताइए, शेयर कीजिए ऑडियंस के साथ. I was a second year resident, yes, second year resident when I was doing my general surgery. So there came a boy, I think he was 17 years of age, 16 or 17 years of age. उसको he had blunt trauma abdomen, तो हमारे पास आया था. So at that point of time, when I was doing MS general surgery in NRS Medical College, after 4 PM the only investigation available was an X-ray, no other investigation. तो हमने एक्सरे कराया. एक्सरे वॉज मोर और लेस ओके, बट द एब्डोमेन डिडंट लुक फाइन टू अस. तो वी डिसाइडेड वी विल ओपन एंड द पेशेंट वॉज ऑल्सो डिटोरिएटिंग. तो हमने ओपन किया एब्डोमेन एंड इट वॉज अराउंड 11:30 या 10:30 और 11:30 वॉज द टाइम, रात के. देन when I opened the abdomen, like, I was taken aback because the patient had pancreatic injury, and in general surgery we have very less exposure of pancreas per se, very less exposure, almost to nil. So I was like, now what to do? So I called my seniors and then my SR. So all 4 of us, we did the surgery, we completed the surgery. It finished at around 7 o'clock in the morning. But the patient was fine. He went back without any complications and everything. डायग्नोसिस ऑब्वियस नहीं था एंड यू हैड टू टेक अ कॉल फॉर द सर्जरी. आपकी गट टोल्ड समथिंग वाज रॉन्ग. मतलब बहुत बार ऐसा हुआ है कि इन्वेस्टिगेशंस, क्योंकि इन्वेस्टिगेशंस तो बेसिकली दे आर मशीन बेस्ड. बहुत बार ऐसा होता है कि इन्वेस्टिगेशंस में और जो हम सोच रहे हैं उसमें डिफरेंस आ जाता है. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उस समय या तो आप अपने गट फीलिंग के साथ जा सकते हो और यू बी मोर प्रैक्टिकल, और आप उसके इन्वेस्टिगेशंस के हिसाब से जा सकते हो. सो बट इन टूडेज टाइम विथ सो मैनी इन्वेस्टिगेशंस एंड सो मच एडवांसमेंट, दैट गैप हैज़ कम डाउन टू लेस देन से 0.1%. मैक्सिमम टाइम्स आप कोरिलेट कर लेते हो एंड आपको आइडिया मिल जाता है कि हाँ, मुझे शुड आई ओपन और शुड आई नॉट ओपन. कोई ऐसा मोमेंट आया जब आपको, मतलब पीपल एक्सपेक्टेड यू टू ऑपरेट, बट आपने बोला नहीं, इस केस में आई डोंट वांट टू ऑपरेट, मतलब द स्टेक्स आर हाई ईदर वे, वेयर यू हैड टू रिफ्यूज टू डू अ सर्जरी? I did a surgery of an 18-year-old girl, and it was a difficult abdomen. पहले के उसके ऑपरेशंस हो चुके थे और बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे. क्या केस था, थोड़ा बताओ ना.
वो पेशेंट पहले ऑपरेट हुआ था, आज से 1 साल 1.5 साल पहले ऑपरेट हुआ था, एंड देन उसको एब्डोमेन में ट्यूबरकुलोसिस था, पेट में टीबी था, और साथ में उसको छोटी आंत में एक छेद हो गया था। तो उस टाइम पे उसको स्टोमा किया गया था, एक स्टोमा बनाया गया था। स्टोमा इज एन ओपनिंग फॉर पासिंग स्टूल। हाँ, ठीक है। स्टोमा एज एन ओपनिंग फॉर पासिंग स्टूल्स। वो हम आंत को, छोटी आंत चाहे बड़ी आंत को, पेट से बाहर निकाल देते हैं सो दैट पेशेंट आराम से स्टूल पास कर सके। एंड इट इज़ अ लास्ट रिजॉर्ट, इट इज़ अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर। जब आप कुछ नहीं कर सकते एंड द आइडिया इज टू सेव द लाइफ, दिस इज़ अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर। सो वो हुआ था उसको। फिर पेशेंट उसके बाद घर गया, एंड देन शी वॉज ऑन मेडिकेशन। कुछ टाइम तक उन्होंने अपने टीबी की मेडिकेशंस कंप्लीट की। इन द मीन वाइल पेशेंट को स्मॉल इंटेस्टाइन से एक अलग से भी फिस्टुला बन गया था पेट में, और यूरिनरी ब्लैडर का भी एक फिस्टुला बन गया था, और उसका वूंड भी काफ़ी ख़राब था पहले, मतलब फर्स्ट सर्जरी के बाद इन्फेक्शन हुआ होगा या जो भी हुआ होगा, उसकी वजह से वूंड भी काफ़ी ख़राब हो गया था, और सेकेंडरी हीलिंग से हील हुआ था। ठीक है। और ये जो फिस्टुला बना था, तो क्या यूरिन ऐसे पेट से लीक होता था? हाँ, पेट से आता था, फिर वो धीरे 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 कम हो गया, बट आता था। ओके। तो फिर उसके बाद जब वो पेशेंट हमारे पास आए, तो आई हैड टू सी, first I was, when I saw the abdomen, it was like, I realized it is going to be very difficult, but then they insisted, the patient and the attender, they wanted the surgery to be done, and initially I was hesitant, करना है नहीं करना है, because the stakes are very high. हाथ खड़े हो जाएं किसी का भी ऐसा केस देख के, व्हाट And गिव्स यू दैट 18-year-old करेज? 18-year-old girl, तो I explained them everything. I explained them कि ये सर्जरी हम एक वन गो में भी कर सकते हैं, वी कैन डू इट इन पार्ट बाय पार्ट सर्जरी, एज अ पार्ट बाय पार्ट सर्जरी वी कैन डू, कि एक पार्ट अभी करेंगे, दूसरा पार्ट अगली बार करेंगे, या हो सकता है हम कुछ ना कर पाए, क्योंकि ऐसा एब्डोमेन हो कि हम कुछ कर ही ना पाए, सारी जगह चिपका हुआ है हाँ। अंदर। तो फिर ये वंस दे अंडरस्टूड दिस, उसके बाद देन वी स्टार्टेड इवैल्यूएटिंग द पेशेंट। हमने पेशेंट को पूरा वर्कअप किया जो भी करना था, एंड सीटी स्कैन रूम में बैठ के 4-5 दिन मेरे ख्याल से मुझे लगे रेडियोलॉजी से पूरा डिस्कस करने में कि क्या है, कैसे है, क्या करना है, कैसे नहीं, बिकॉज मैक्सिमम टाइम सर्जरी की प्लानिंग तो सीटी स्कैन रूम में ही हो जाती है। ओके, कि कहाँ से अप्रोच, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, एक आइडिया लग जाता है, एटलीस्ट एक रफ आइडिया आपको लग जाता है कि आप सर्जरी क्या करोगे, कैसे करोगे, कहाँ से जाना है, कैसे करना है, और क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं पॉसिबल। तो दैट वे सीटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो फिर उसके बाद हमने प्लान किया, पहले लैप्रोस्कोपी किया। प्लान मैंने ऐसे ही किया कि पहले लैप्रोस्कोपी करेंगे, एंड देन जो भी अधेशंस है, क्योंकि उसके मिड लाइन जो बीच में जो वूंड था उसके नीचे पूरा इंटेस्टाइन चिपका हुआ था, तो हमने साइड से पहले लैप्रोस्कोपी पोर्ट्स डाले, एंड देन उसको सारे जो भी चिपका हुआ था उसको नीचे किया, एंड देन ओपन करके एब्डोमेन, एंड देन वी डिड द कंप्लीट सर्जरी इन वन गो। फिर उसके बाद 3 days पेशेंट वॉज फाइन, एंड देन उसको थोड़ा सा लीक होने लगा, ड्रेन में थोड़ा सा बाइल जैसा आया, मतलब ऐसा लगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो चीज़ होती है वो बाहर आ रही है। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई डिसाइडेड कि आई थिंक वी विल हैव टू टेक द पेशेंट फॉर सर्जरी। मैंने पेशेंट अटेंडर्स को बोला, एंड देन एवरी वन वॉज कि नहीं, सर्जरी करना है, करना है, करना है, करना है, करना है। बट देन आई डोंट नो, पेशेंट देखने में बिल्कुल ठीक लग रही थी, 18-year-old गर्ल अपना चल फिर रही है, एवरीथिंग वाज फाइन, ऑल हर रिपोर्ट्स आर फाइन। तो देन आई टुक अ कॉल कि एक सीटी स्कैन करा लेते हैं। देन वी गॉट अ सीटी स्कैन डन। सीटी स्कैन में कुछ भी नहीं आया, देर इज़ नो लीक, नथिंग, बट ड्रेन में बिलियस कंटेंट आ रहा है, तो डेफिनेटली देर इज़ अ लीक, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट। तो देन दिस वॉज लाइक कि क्या करना है, कैसे करना है। बट देन सिंस द पेशेंट वॉज एब्सोल्युटली फाइन, और सीटी स्कैन में भी कुछ नहीं आ रहा, इसका मतलब जो भी लीक होगा छोटा ही होगा, दैट विल हील ऑन इट्स ओन। सो दैट वाज अ डिसीजन। पीपल वर सेइंग कि कर दो, बट देन आई वाज लाइक नहीं, अभी नहीं, वेट कर लेते हैं, एंड इट्स फाइन, पेशेंट इज़ फाइन नाउ। ओके। कभी ऐसा कुछ अटकता है वेयर रिपोर्ट्स अलग चीज़ बोल रही हैं,
और क्लिनिकल एक्सपीरियंस अलग चीज़ बोल रहे हैं. डू यू हैव सम मेंटर टू बैंक अपॉन और यू हैव टू टेक योर ओन कॉल्स? मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स तो you take your own call because every patient is different. हाँ, mentors obviously there are mentors, there are friends जिनके साथ मैंने काम किया है, तो obviously they guide, they help at every point of time. Whenever I need, I call them, ask them, and they guide. Yes. And जब आप मेडिकल फ्रेटर्निटी में रहते हो तो सिर्फ अपनी स्पेशलिटी नहीं, दूसरे स्पेशलिटीज़ के भी फ्रेंड्स आपके बनते हैं और उनकी ज़रूरत पड़ती है बहुत बार कि ऐसा हो रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. सो या एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम everyone helps. The idea is कि whatever is required for the patient to be fine, तो उसके लिए आप जहाँ से भी हेल्प ले सकते हो, you take help. There is nothing wrong in taking help. Thing that you have found inside a patient's body? वो बियर बॉटल का एक टिप इन अ पेशेंट्स रेक्टम. उसने स्वालो करा क्या? नहीं, it was, he was habituated. Okay, he had his own perversions, he was habituated. तो वो बियर की बॉटल ब्रेक हो गई and then a part of it was inside the rectum, so we had to remove it. हमें उसको निकालना पड़ा एनोस्कोप से, जिससे हम टेस्ट करते हैं, उससे हमको एनोस्कोप से निकालना पड़ा. बट देन परफोरेशन था तो हमें एब्डोमेन खोल के उसका स्टोमा बनाना पड़ा. कांच से परफोरेशन हाँ, हो गया था. स्टोमा बनाना पड़ा, विच मीन्स स्टूल के लिए अलग ओपनिंग हाँ, अगेन यू हैव टू क्रिएट. ताकि नीचे वाला जो रास्ता है जहाँ पे वो, क्योंकि बॉडी की टेंडेंसी होती है अपने आप को हील कर लेने की, दैट इज अ टेंडेंसी ऑफ द ह्यूमन बॉडी. तो अगर कहीं पे कोई चोट लग गई है, उस पार्ट को आप आराम दे दो तो इट विल हील. तो इंटेस्टाइन में अगर कहीं पर भी कोई ऐसी चोट लग जाती है, कोई छेद हो जाए, कोई चोट लग जाए ऐसा, तो हम उसके ऊपर एक स्टोमा बना देते हैं ताकि नीचे वाले हिस्से को रेस्ट मिल जाए. वो रेस्ट मिल जाएगा तो इट विल हील. हाउ डिफिकल्ट और ईजी इट इज़ कि मतलब कहने में बहुत आसान लग रहा है कि एक स्टोमा बना दिया, बट उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस एंड टू मेक अ पेशेंट अंडरस्टैंड दैट आप स्टूल नॉर्मली पास नहीं करोगे, आपको पेट से स्टूल पास होगा. और उसको कैसे आप केयर करोगे, वहाँ से इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा. जर्नी ऑफ मेकिंग द पेशेंट अंडरस्टैंड दैट. No, it is, see, everything is easier said. Yes, it is difficult for the patient. Definitely it is difficult for the patient because more than anything there is एक social awkwardness हो जाती है पेशेंट को जिसको स्टोमा होता है. ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें, उसको थोड़ा केयर ज़्यादा करना पड़ता है. बट देन एट द एंड जब आप स्टोमा बना रहे होते हो तो आपके हाथ में सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो लाइफ हो या तो लाइफ ना हो. बिकॉज एज आई टोल्ड यू, स्टोमा तो एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है. ठीक है, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 90% 95% ऑफ द टाइम्स ये टेम्पररी ही होता है. उसको 2 महीने बाद 3 महीने बाद वापस इसको जोड़ के अंदर कर दिया जाएगा तो नॉर्मल हो जाएगा पेशेंट. तो बट जब आप बना रहे होते हो तो आपके हाथ में जो ऑप्शन होता है वो होता है कि अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो पेशेंट लाइफ इज एट रिस्क, एंड द सेकेंड ऑप्शन इज कि पेशेंट हैज अ लाइफ विथ स्टोमा. So I always feel patient having a life with stoma, especially a temporary stoma, is much better than not having life at all. पेशेंट क्या खुद उसको एम्प्टी और ये कर लेते हैं या अटेंडेंट्स डू इट फॉर देम? पेशेंट्स भी कर लेते हैं, ट्रेन कर दिया जाता है, अटेंडेंट्स भी कर देते हैं. वो दे गेट ट्रेन. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. आपको यू जस्ट हैव टू बी, मतलब आपको बस समझना होता है उस चीज़ को. और एंड यू हैव टू एक जो अंदर से एक घृणा का भाव होता है कि क्या आ रहा है अंदर से, स्टूल है आ रहा है ऐसे, यू हैव टू ओवरकम दैट. उसको उसके पार जाना होता है. तो देन इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट अ प्रोसीजर. बट सोशली ऑकवर्ड तो होता है. यस, वो पीपल ओवरकम इट ग्रेजुअली. आप तो काशी वाले हो, तो वहाँ पे बहुत सारे अघोर जो साधक हैं वो हैं, तो उसमें भी शायद यही सिखाया जाता है ना कि घृणा के पार जाना है. लेकिन उनको हाँ, कुछ yes, ये yes, वाला कंसेप्ट नहीं रहता ना yes, कि अच्छा है बुरा है. बिल्कुल. तो वेदर यू हैव टू ईट द इंटेस्टाइन्स और द स्टूल और इवन द डेड बॉडीज. सो डॉक्टर होना भी मुझे लगता है अपने आप में किसी साधना से कम नहीं है. यस, बिल्कुल. ये तो इट इज़ डेफिनेटली, क्योंकि आपकी जर्नी, जैसे कोई तांत्रिक बोले या साधु बोले या जो भी बोले, उनके अपने रिचुअल्स होते हैं, उनकी अपनी तपस्या होती है कि अगर वो उन्होंने सिद्धि प्राप्त की है या जो भी किया है, उनको एक पर्टिकुलर टाइम लगा है, एक तरीके से उन्होंने की है, और उसके बाद
अब वो अकम्प्लिश्ड हैं कि ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं. इट इज़ सेम फॉर अस. आप MBBS करते हो, MS करते हो, MCH करते हो या वॉट एवर स्पेशलिटी आप करते हो, इट टेक सम 11-12 years. Right. Good, bad, happy, stressed, everything. It takes some 11-12 years to complete this. So as a professional या looking back into it, यही बोल सकते हैं कि वो साधना ही थी या जो भी था. Yes. Was there any surgery which took a sharp turn on the operating table? कि suddenly some unexpected events happened during the surgery, and how did you keep your calm during that? Surgery per se, yes, it has happened multiple number of times. Sometimes तो सर्जरी ना किए हुए भी हुआ है. But that is all part and parcel of surgical profession. कोई पेशेंट का केस शेयर कीजिए, बिकॉज वी वांट टू अंडरस्टैंड थिंग्स फ्रॉम अ सर्जन्स पर्सपेक्टिव एंड फॉर द ऑडियंस ऑल्सो टू बी मोर एक्वेंटेड विद कि सर्जन के स्क्रब के अंदर जो पर्सन है व्हाट ऑल ही हैज़ टू डील. मतलब उनको लगता है ना कि अच्छा सर्जरी बोल दी, चाहिए भी कि नहीं चाहिए, बट हु इज़ द पर्सन हु इज़ डूइंग द सर्जरी, उसके अंदर क्या क्या चलता है और वो क्या क्या बैटल्स ऑलरेडी लड़के आया होता है और तब वो जाके सर्जन बनता है. नहीं तो लाइक जब कोई पेशेंट आता है हमारे पास एंड ही वारंट्स अ सर्जरी, उसको सर्जरी की ज़रूरत होती है, बिकॉज वी कंसिडर सर्जरी एज अ लास्ट रिसोर्ट ऑफ एनीथिंग. जब तक चीज़ें दवाइयों से ठीक हो सकती हैं दवाइयाँ करें. बट अगर हाँ कोई ऐसी चीज़ है जिसका क्योर ही सर्जरी है या जिसका दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है और एंड रिजल्ट ही सर्जरी है, तो फिर देन यू हैव टू गो फॉर सर्जरी. उसमें तो कुछ नहीं कर सकते. फ्रॉम आवर साइड व्हाट वी डील विथ इज़, जब हम देखते हैं पेशेंट को, पेशेंट के रिपोर्ट्स को देखते हैं या क्या सर्जरी करनी है, तो उसके हिसाब से हमें एक आइडिया लगता है कि हाँ ठीक है ये सर्जरी करनी है, कैसे करनी है और इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. एंड वो सारी चीज़ें हम पेशेंट को बिल्कुल बताते हैं. बट देर आर थिंग्स 1%, 2% चांसेस ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन और इम्पॉसिबल टू कॉम्प्रिहेंड ऑल्सो. रिसेंटली हमारे पास एक केस हुआ था कि एक पेशेंट था, उसका हम सर्जरी करने जा रहे थे. गॉल ब्लैडर की ही सर्जरी थी, गॉल ब्लैडर कैंसर की एक्चुअली सर्जरी थी. तो हमने सिर्फ एक पोर्ट डाला था, कैमरा अंदर देखने के लिए क्या है कैसा है, पोर्ट डाला था. वो पोर्ट के लिए मैंने बस कट लगाया था और पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो गया. ओके. एंड द पेशेंट वाज वेरी हेल्दी पेशेंट. कोई कोमॉर्बिड, उसको कुछ शुगर ब्लड प्रेशर कुछ भी नहीं, हार्ट का चेकअप हुआ था, सब चेकअप होके फिर वो टेबल पे गया था. बट देन उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया टेबल पे. एंड दिस वाज, ऑल्दो हम हर सर्जरी में पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं कि देर इज 1% चांस ऑफ एनीथिंग हैपनिंग. नाउ इन दैट एनीथिंग एवरीथिंग कम्स, बिकॉज इवन वी डोंट नो. So patient की family और attendants, how did you deal giving the news or breaking out the news to them? No, the patient was managed in the OT. अच्छा. Patient was managed in the OT. We have a very good team at the hospital, anesthesia team, cardiac team, all team. So they were called उस time पे या वो Anesthesia पहले team से? तो always present, हाँ. तो and ऐसा cardiac कुछ? team is also always present. अच्छा. तो क्योंकि देर इज़ वन OT कॉम्प्लेक्स, उसमें सारे OTs चल रहे होते हैं, सब लोग अपने उसमें होते हैं OTs में. तो वी जस्ट हैड टू कॉल फिर एंड दे केम एंड देन द पेशेंट वाज मैनेज्ड. कार्डियक अरेस्ट मैनेज कर लिया था. मैनेज हो गया था. एंड देन फिर वो सर्जरी तभी हुई गॉल ब्लैडर कैंसर की या उसको डिले कर दिया? दैट वाज पोस्टपोन्ड. द सर्जरी वाज पोस्टपोन्ड. ओके. ही वाज इवैल्यूएटेड पोस्ट कार्डियक अरेस्ट. आल्सो उसके इवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं आया था. तो कार्डियक अरेस्ट क्या CPR कर दिया या और भी कुछ करना, प्रोसीजर भी करना पड़ा कोई? ओह, दैट इज द एनेस्थेटिस्ट्स कॉल. ओके, दे मैनेज्ड इट. केस और स्टोरी दैट हैज स्टेड विद यू? सर्जरी में था, एक पेशेंट था, वो आया था हमारे पास, बाहर से कहीं सर्जरी हुई थी और उसको पूरा एब्डोमेन ऑलमोस्ट ओपन था और मल्टीपल फिस्टुलास बने हुए थे उसको.
हमने उसको मैनेज किया था. आई स्टिल रिमेंबर द नेम, राजू नाम था उसका. तो ही वॉज अ यंग बॉय. तो हम उसको मैनेज कर रहे थे तब तक के लिए, जब तक के लिए पेशेंट फिट ना हो जाए फॉर अ डेफिनेट सर्जरी. बट देन व्हेन आई एनकाउंटर, बट 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद, व्हेन आई एनकाउंटर्ड हिज फैमिली, आई रियलाइज कि दे वर सो पुअर दैट बीइंग इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑल्सो, जहाँ पे उनको एक भी रुपए नहीं पे करने हैं किसी भी चीज़ के लिए, दे वर हंग्री फ्रॉम पास्ट 3 days, क्योंकि उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो बाहर से खरीद के कुछ खा सकें. सो उस टाइम पे आई टॉक टू माई सीनियर्स एंड एवरीथिंग एंड वी ऑल चिप्ड इन, और हम उनको पैसे देते थे जब तक कि उसका ट्रीटमेंट पूरा ना हो जाए. और ट्रीटमेंट में जो भी कुछ लगता था वी यूज टू पे एंड एवरीथिंग. सैडली दैट पेशेंट एक्सपायर्ड. ओके. या कभी ऐसा हुआ कि किसी फैमिली का वायलेंट रिएक्शन एज अ डॉक्टर, आजकल हम बहुत सुनते हैं वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर, हाँ, दैट यू हैड, कोई प्लीज शेयर. इंसिडेंसेस हुए हैं, बस किस्मत अच्छी थी कि बहुत मार नहीं खाए. अच्छा, मतलब दे ऐसे फिजिकल वायलेंस वाला? हाँ, yes, बहुत yes. मार नहीं खाई मतलब? मतलब असॉल्ट हो गया था? हाँ हाँ कहाँ पे, ये कहाँ की बात है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हाँ, प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल? हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में. तो मतलब पेशेंट को आउटकम नहीं बताया गया था या? नहीं, थोड़ा इट वाज नथिंग टू डू विथ एनीथिंग. इट वाज लाइक हमारी इमरजेंसी ड्यूटी चल रही थी एंड इट वाज अ क्वाइट डे. कोई केसेस नहीं थे तो हम लोग अपना अंदर बैठे हुए थे एंड देन सडनली थोड़ी आवाज़ आई तो हम बाहर गए देखने के लिए. तो एक पेशेंट आया था जिसने अपना हाथ काट लिया था. अपेरेंटली ही वाज टॉकिंग टू हिज गर्लफ्रेंड और समथिंग, और उसने गुस्से में आके टीवी में हाथ दे मारा और उसका हाथ कट गया. तो उसके 4-5 दोस्त उसको लेकर आए थे. दे ऑल वर ड्रंक. तो मैं बाहर आया और मेरे साथ 2 इंटर्न्स थे. दैट टाइम आई वाज फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर रेसिडेंट, फर्स्ट ईयर रेसिडेंट आई थिंक, या फर्स्ट ईयर रेसिडेंट. और मेरे साथ 2 इंटर्न्स थे, वो हम बाहर आए थे. तो वो पेशेंट, उनके अटेंडर्स जो थे, दे वर सो अग्रेसिव कि वो तुरंत पेशेंट को लेकर आए एंड देन दे इमीडिएटली कॉलर पकड़ के कि आप पेशेंट को कुछ हो गया तो अच्छा नहीं होगा, ये वो वगैरह वगैरह. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन दे आर हेकलिंग पेशेंट को, जब देख रहे हैं तो एब्सोल्युटली फाइन, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा कट लगा है, इट नीड स्टिचेस, दैट इज़ ऑल. उसमें ज़्यादा कुछ करना भी नहीं था. बट दे वर एट द पॉइंट ऑफ अग्रेशन, उन्हें मारना था, कुछ करना था. बट थैंकफुली मेरा सीनियर आ गया. सो ही डेल्ट विद द सिचुएशन इन अ ब्रिलियंट वे. उसने बोला अरे पेशेंट बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, और उन्होंने पेपर पे लिख के दिया तुम ये लेकर आओ, तुम ये लेकर आओ, तुम ये लेकर आओ. एंड ही डिस्पर्स द क्राउड. वो लोग भाग गए अपना अपना काम लेने के लिए. वी डिड द या. नहीं, कभी ऐसा होता तो ऐसे नहीं होता, हमें इलाज ही नहीं करना है इस पेशेंट का, मतलब एक तो इलाज करे ऊपर से मारने ये पीटने होता को है, है। बिल्कुल होता है. एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम ये लगता है कि बता रहे हैं इलाज करने के लिए, बट इफ समवन डजंट वांट टू अंडरस्टैंड फॉर व्हाटएवर रीजन, द प्रॉब्लम वहाँ पे हो जाती है जब एक आदमी डॉक्टर के पास आता है और उसकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो जाती हैं कि ठीक है अब तो ठीक ही हो जाएगा, कि वो ये समझने के लिए ही तैयार नहीं होता कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम का आउटकम क्या हो सकता है. एंड नाउ दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डील विद. कि अगर के मेंटल बैरियर है, आपने बना लिया है कि नहीं पेशेंट तो ठीक ही होना चाहिए, अभी तो एकदम ठीक था, 4 दिन पहले बिल्कुल ठीक था, और अभी कैसे खराब हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया, डॉक्टर ने कुछ कर दिया है, डॉक्टर ने कुछ कर दिया, या डॉक्टर ठीक से इलाज नहीं कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं. बट वो ये नहीं, उस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो ये समझना ही नहीं चाहते कि पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है. क्योंकि ह्यूमन बॉडी डजंट वर्क 1+1 2. एक लीनियर इक्वेशन नहीं होती है. ह्यूमन बॉडी वर्क्स इन, आई डोंट नो, इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस. 1+1 कैन बी 11, 1+1 कैन बी 1100. एंड मेकिंग अ पेशेंट्स अटेंडर और someone to understand, sometimes it's very difficult. अगर कोई समझना ना चाहे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. इसलिए याद है क्योंकि मुझे खुद मैं तो फर्स्ट ईयर में ही था, मुझे बहुत उस एक मोमेंट में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल गया था कि यार ये भी ज़रूरी है. डॉक्टर है तो है,
बट येस दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो गार्ड्स वगैरह नहीं होते सेफ्टी के लिए गार्ड्स hospital में? वगैरह नहीं, तो जैसे वहां पर थे इतने गार्ड्स नहीं थे। नीचे हम जैसे हमारा जो फ्लोर, वी वर ऑन द फर्स्ट फ्लोर, तो वहां पे सिर्फ पेशेंट्स जिनको सर्जरी या सर्जिकल कुछ रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ वही आते थे। बाकी का इमरजेंसी तो नीचे होता था, हमारा इमरजेंसी ओटी फर्स्ट फ्लोर पर होता था। तो इसलिए वो वहां पे कोई गार्ड वार्ड नहीं होते थे वहां पे। और अंदर अगर गार्ड है भी तो अंदर है, कहीं है। रिएक्शंस एंड व्हाट यू मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग उसमें आपको क्या सीखने मिला? नहीं, बहुत होता है। जैसे पेशेंट्स आते हैं, जैसे एक पेशेंट एक बार आया था विथ अक्यूट पैंक्रेटाइटिस से, अराउंड 35-year-old मेल, ड्रिंकिंग करता था और उसको पैंक्रेटाइटिस हो गया। पैंक्रेटाइटिस होने के बाद, अब पैंक्रेटाइटिस का प्रॉब्लम ये होता है कि इट कैन टेक, दैट डिजीज कैन टेक ड्रास्टिक टर्न्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और बाहर से कुछ नहीं दिखता। पेशेंट आता है सिर्फ पेट में दर्द लेकर कि जस्ट पेट में दर्द है, बट दैट पैंक्रेटाइटिस कैन टेक ड्रास्टिक टर्न्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। राइट। तो वो आए थे, पेशेंट को पैंक्रेटाइटिस था, उनका सीटी स्कैन कराया तो पता चला कि एक्यूट नेक्रोटाइजिंग पैंक्रेटाइटिस है। पेशेंट का पैंक्रियाज एकदम सड़ गया है पूरा का पूरा, एंड देन पेशेंट स्टार्टेड डिटोरिएटिंग, एंड फ्रॉम डे वन बीन एक्सप्लेनिंग कि ये पैंक्रेटाइटिस है, अभी पेशेंट ठीक लग रहा है बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम खराब हो सकता है, दिस एंड दैट, एंड एवरीथिंग वाज बीइंग एक्सप्लेन्ड। बट स्टिल जब पेशेंट खराब होने लगा, दे आर नॉट रेडी टू टेक इट। वायलेंट हो जाना, गाली गलौज करना कि ये है वो है, वो करते हैं। हाउ डू यू कीप योर काम इन सच सिचुएशंस? मतलब ऑब्वियसली You- कोई आपको आके गाली दे रहा है, आप तो सेव कर रहे हो, नहीं, कोशिश but- कर रहे हो टू सेव देयर लाइफ। You understand कि what they are doing is because of their unawareness. जैसे कहते हैं ना कि अनजाने में जो गलती की जाए उसे गलती नहीं माना जाता, तो वो जो भी करते हैं वो अनजाने में करते हैं क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यही लगता है कि ठीक है, इसको तो समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, समझ जाएगा। And on the contrary, different reaction that you got, which you know completely took you by awe, कि ऐसा होने के बाद भी इतना कंपोजर मैंने देखा ही नहीं। ऐसी कोई स्टोरी? एक पेशेंट था जिसको सर्जरी के लिए प्रिपेयर किया था, और सर्जरी होनी थी, तो मैंने उनके पेशेंट से बात की, अटेंडर से बात की, सब कुछ पूरी मेडिकल हिस्ट्री ली, एंड आई वॉज इन टच विद देम जब तक उनका इवैल्यूएशन हो रहा था, एवरीथिंग। बट जब वो आते थे मुझसे मिलने के लिए तो मेरी हर बार बातचीत होती थी पेशेंट से, पेशेंट के अटेंडर से, ठीक है। तो पेशेंट तो मेरे पास एक दो बार ही आए, मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट अटेंडर आते थे, मेरी उनसे बात होती थी। मैंने पूछा, और मैं हमेशा पूछता था, इट इज़ अ जनरल हिस्ट्री टेकिंग प्रोसीजर, कि कोई और कोमॉर्बिडिटीज़ है पेशेंट को, शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड वगैरह वगैरह वगैरह, कोई और प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और उनका कोई पिछला मेडिकल रिकॉर्ड भी ऐसा नहीं था जो अवेलेबल हो उनके पास। तो इवन सो मच सो दैट कि सर्जरी के पहले भी उनसे पूछा था, जस्ट इमीडिएटली बिफोर सर्जरी, एंड उनकी सारी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल थी। एब्डोमेन में एक सर्जरी करनी थी, किया, बट देन पेशेंट को सर्जरी के दिन एवरीथिंग इज़ फाइन, सर्जरी के बाद पेशेंट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, रात में पेशेंट को सीजर आ गया, एंड सीजर आया एंड देन कंटिन्यूसली आता रहा, एंड देन पेशेंट लेटर ऑन एक्सपायर्ड द नेक्स्ट मॉर्निंग, ही कुडंट सर्वाइव टिल नेक्स्ट मॉर्निंग। तो सीजर के लिए कोई ऐसे इमीडिएट मेडिसिन नहीं होती? मेडिकेशन चले थे, बट नहीं सीजर रुका। काफी टाइम तक आता रहा, Control ही नहीं हुआ। या इट टुक टाइम टू कंट्रोल दो सीजर्स। तो फिर पेशेंट एक्सपायर्ड, देन अगेन द अटेंडर्स केम, मेरी बात हुई उनसे, फैमिली के और भी मेंबर्स आए थे, तो देयर वर अराउंड 6-7 पीपल, जिसमें से एक बंदा मुझे आके बताता है कि इनका 2 साल पहले ब्रेन में प्रॉब्लम हुआ था, जिसके लिए हॉस्पिटलाइज्ड एडमिट हुए थे।
एंड देन आई आस्क्ड देम कि मैंने आपसे इतनी बार पूछा था कि यू टेल मी कुछ और हुआ है, कुछ और हुआ है, एंड इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ आप मुझसे नहीं बताई, इट वॉज सो इम्पॉर्टेंट, दे एक्सेप्टेड इट. How do you think it could have changed the outcome of the surgery? या ऑब्वियसली. कैसे? क्योंकि व्हेन वी वर, हम ब्रेन को इवैल्यूएट कराते पहले, अगर थोड़ा सा भी इंडिकेशन होता कि ब्रेन में कुछ हुआ है या पहले कोई ऑप्शन है, तो सर्जरी, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग एन इलेक्टिव सर्जरी, यू हैव टू बी 100% श्योर कि पेशेंट इज एब्सोल्युटली फाइन. तो जैसे हम नॉर्मली अगर कोई हिस्ट्री कुछ नहीं होता है तो हम एक कार्डियोपल्मोनरी इवैल्यूएशन कराते हैं पेशेंट का कि हार्ट एंड लंग्स आर फाइन, देन वी विल प्रोसीड विद आवर सर्जरी. बट हाँ, अगर कोई ऐसी हिस्ट्री मिलती कि पेशेंट के ब्रेन में पहले कुछ हुआ है या कुछ ऐसे हुआ है, तो डेफिनेटली हम लोग एक ब्रेन का इवैल्यूएशन भी कराते, एक न्यूरोलॉजिस्ट से लेते, और एडवाइस में कि अगर उनको इंट्रा ऑपरेटिवली, पोस्ट ऑपरेटिवली कुछ मेडिकेशन चाहिए तो हम पहले से ही पेशेंट को ऑन मेडिकेशन रखते कि ये सीजर हो ही ना, बिकॉज सीजर कैन हैव, इट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग एंड इट हैज़ लाइफ थ्रेटनिंग कॉन्सिक्वेंसेज, स्पेशली आफ्टर अ सर्जरी. स्टिचेस वगैरह भी ओपन हो जाते होंगे या रिस्क होता होगा? नहीं, उसका रिस्क तो कम होता है. मोस्टली होता है पेशेंट को हाइपोक्सिया हो जाता है, ऑक्सीजन कम मिलता है, ब्रेन में ऑक्सीजन कम मिलता है. आपने अगर कोई सर्जरी की है तो, या कुछ किसी चीज़ को काटा या जोड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन अगर बॉडी को कम मिलता है तो इट हैम्पर्स एवरीथिंग. ओके. अगेन वही क्वेश्चन कि एनी केस वेयर आपको लगा कि डेथ इतने ग्रेसफुली पेशेंट और अटेंडेंट जो है एक्सेप्ट कर ली कि दैट इट शुक यू, ऐसा कोई केस? मतलब वायलेंस तो आपको हर जगह मिलेगा कि पेशेंट कुड नॉट बी सेव्ड फॉर एनी रीजंस व्हाटसोएवर, एंड attendants got violent, yeah, they started abusing. But the other picture, have you ever seen that picture? Oh, ever? yes. Share something. When I was doing my MCH, तो एक पेशेंट थे, उस पेशेंट की सर्जरी हुई थी, कोरोसिव इंजेक्शन, यंग फीमेल थी, उन्होंने एसिड पिया था. एसिड, ओके. तो उसके लिए कोलोप्लास्टी हुआ था. पेशेंट 2 दिन तक बिल्कुल ठीक थी, एंड देन सडनली शी डेवलप्ड अ थैलेमिक इन्फार्क्ट, ब्रेन में अच्छा एक जगह हेमरेज हो गया. एंड आफ्टर दैट पेशेंट वाज विथ अस फॉर 2 months in a comatose state, so much so that कि और उस टाइम पे कोविड का टाइम भी चल रहा था. सो हॉस्पिटल्स में सेंट्रलाइज एसी था, तो एसी ऑफ था, एंड तमिलनाडु हैज़ अ वेरी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. सो दैट पेशेंट वाज सच दैट कि देयर अटेंडर्स वर आस्किंग यू फॉर हर डेथ, and we couldn't do anything because the patient was alive in a coma. So yeah, but then when she expired, they were relieved and they were happy about it. Seen death up so close, are you scared of death now? क्योंकि हॉस्पिटल्स आर लाइक पोर्टल्स ना, लाइफ एंड बर्थ दोनों चीजें हॉस्पिटल्स में ऑनगोइंगली होती रहती है. सो डेथ, डज इट स्केयर यू नाउ? अब वेल, अभी आई नेवर थॉट अबाउट इट, बट या डेफिनेटली आई डोंट नो हाउ माई डेथ वुड बी, बट यही लगता है कि जो अगर कुछ सोचा है मैंने, वो सारे काम कर लूँ, फिर देखा जाएगा. So I don't know whether I'm afraid or not, क्योंकि अभी तक इतना सोचा नहीं. क्योंकि आप दिन रात हाँ, इस रियलिटी को फेस कर रहे हो कि क्योंकि people... सामने यही हो रहा है. और लगता है कि डेथ में आपको तो कुछ नहीं होता, आपके पीपल हु आर सराउंडिंग यू, दे सफर. योर तो सफरिंग कम्स टू एन एंड. ये तो आसपास के लोग हैं हु सफर इन देयर इमेजिनेशंस. कभी ऐसा हुआ है दैट यू नो दैट द पेशेंट इज नॉट गोइंग टू मेक इट,
and you have sat beside them and counseled them for the ultimate, that they accept it more gracefully. या एब्सोल्युटली, वो तो हो जाता है पेशेंट अगर खराब होता है एंड वी कैसे सी. कैसे किया? बिकॉज इट्स रियली टफ थिंग टू डू. किसी को उस डर से कैसे मुक्त कराया आपने? व्हाट डिड यू से टू देम? डर से मुक्त कराने की बात ही नहीं होती है. यू आप द ओनली आर्मामेंटेरियम इन योर हैंड इज ट्रूथ. आप उनको सच बताते हो, सारी कंडीशंस बताते हो कि पेशेंट ऐसा है एंड नॉट द अटेंडेंट, द पेशेंट. आई एम टॉकिंग अबाउट द पेशेंट. पेशेंट को तो पेशेंट जब पेशेंट उस कंडीशन में होता है कि ही वोंट सर्वाइव, तो इट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन कि आप पेशेंट से बात कर रहे हो. एक हफ्ता है उसके पास, यू नो ये दैट. दिस इज इम्पॉसिबल टू टेल. एक हफ्ता है. वैसे डॉक्टर कहते हैं कितना ना टीवी time- में दिखाते हैं, अब It is- इनके पास जीने के लिए 3 महीने हैं. आप ये इट इज इम्पॉसिबल टू टेल किस पेशेंट या किसके पास कितना समय है जीने के लिए. हाँ, ऐसा होता है कि हमें जब पेशेंट डेटोरिएट करता है, खराब होता है जब एक बार पेशेंट, तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि ओके द पेशेंट इज नॉट गोइंग टू मेक इट नाउ. ओके, एंड दैट इज द एंड. पर उसके बाद आपके पास हफ्ते का समय नहीं होता. ठीक है, उसके बाद आप ये बता सकते हो कि या पेशेंट इज नॉट गोइंग टू मेक इट. हाँ, उसके बाद गॉड्स ग्रेस है कि हफ्ते तक बच गया, तो दैट इज अ डिफरेंट इशू. अगर हफ्ते तक बच गया तो लाइकली सिनेरियो कि ठीक है, हो सकता है रिकवर भी कर जाए. ठीक है, बट देन जब आप किसी को ये काउंसिल करते हो कि पेशेंट इज नॉट देयर, ही इज नॉट गोइंग टू मेक इट, देन यू आर, दैट मीन्स यू हैव ट्राइड एवरीथिंग. एंड व्हेन नथिंग इज वर्किंग, देन यू रियलाइज कि ठीक है अब तो कुछ काम नहीं कर रहा है एंड एवरीथिंग इज गोइंग डाउन साउथ. तब आप पेशेंट के अटेंडर्स को एक्सप्लेन करते हो कि ही इज नॉट गोइंग टू मेक इट. What kind of reactions do you get? Mostly people become sad. Some people start crying. So I tell them, if you want to cry, please do so. It will help you relieve your stress. Someone has ever begged to you for their life or the life of their loved ones? I know, not to me, but I know, I've seen it happen, but not to me. Okay. People, yes, they do say, डॉक्टर साहब कुछ और कर सकते हैं क्या, प्लीज़ ये कर लीजिए, प्लीज़ वो कर लीजिए, कुछ तो कर लीजिए, ऐसे बोलते हैं. A very dreaded word in the hospital, that is when you tell the patient or the attendant, not the patient, obviously the attendant, कि वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा. हाँ हाँ. सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक, वेंटिलेटर पे डाला तो अभी तो वापस नहीं आने वाला है और तगड़ा चौड़ा लंबा बिल आएगा और पेशेंट तो वापस नहीं आएगा. सो No. That is a Patient को- misconception. That is absolutely a misconception. आप ऐसे समझो कि अगर पेशेंट की किडनी खराब हो गई, अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कराते हो, दैट इज श्योर शॉर्ट डेथ. बट आपके पास क्या ऑप्शन है? डायलिसिस. तो आप डायलिसिस से पेशेंट की लाइफ प्रोलॉन्ग कर सकते हो. डायलिसिस में तो कोई नहीं डरता. ठीक है, सेम उसी तरह लंग्स में जब प्रॉब्लम होती है, लंग्स में प्रॉब्लम होती है या पेशेंट फॉर एनी अदर रीजन, अगर पेशेंट इज नॉट एबल टू टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, तो वेंटिलेटर इज द सपोर्ट सिस्टम, जस्ट लाइक अ डायलिसिंग मशीन. जैसे डायलिसिस की मशीन आपके किडनी को सपोर्ट करती है, वैसे ही लंग्स को सपोर्ट करने के लिए वेंटिलेटर होता है. देर आर स्पेसिफिक सिनेरियोज ही जब आप पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालते हो. यस, डेफिनेटली हर चीज़ जो ह्यूमन बॉडी को इन्वेड करती है उसके अपने रिस्क फैक्टर्स होते हैं. सबके, डायलिसिस के भी रिस्क होते हैं, उसी तरह वेंटिलेटर के भी रिस्क होते हैं. तो वेंटिलेटर इज ऑलवेज यूज्ड एज अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर. ऑलवेज, इट इज ऑलवेज अ लाइफ सेवर. बट यस, ऑब्वियसली सब चीज़ के अपने अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं एंड इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स. पेशेंट कैसा है, उसकी कंडीशन कैसी है, उसका और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उसके बॉडी में. इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि पेशेंट वेंटिलेटर से बाहर आएगा, नहीं आएगा तो कब आएगा. यस.
What do you think is the role of optimism and will of the patient in the outcome of his journey? वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब अ पॉजिटिव आउटकम पेशेंट, अगर किसी पेशेंट ही इज मोटिवेटेड देन his recovery is faster. His recovery is much faster than any other patient. How do you compare it and say? It is अगर हमने किसी की सर्जरी की है और पेशेंट को बोला कि आपको चलना है, a patient who is motivated and who is looking forward to it, to getting better early, तो जैसे वो चलने फिरने लगे या जो भी और कुछ एक्सरसाइजेज हम बताते हैं वो करने लगते हैं, एंड थोड़ा बहुत पेन होता है बट येस दे बेयर इट एंड दे डू, उनकी रिकवरी कंपेयर टू अदर पेशेंट्स इज मच फास्टर. Do you think patient counseling before the surgery can help improve the outcome of the surgery? Or No. the more aware you are of the procedure that is going to take place on you, it aids some way in the outcome? Because आजकल मुझे लगता है mistrust is a big issue. या नाउ जो काउंसलिंग का कंसेप्ट होता है वो इसलिए नहीं होता है कि टू मेक मी फील और टू मेक मी अंडरस्टैंड सर्जरी क्या है कैसे है. वो तो मैं पेशेंट को देखा और जब मैंने इन्वेस्टिगेशन देखा तब हम बना लेते हैं कि सर्जरी ये करनी है. द काउंसलिंग पार्ट इज टू मेक द अटेंडर्स या उनके साथ वाले या पेशेंट, उनको ये समझाना कि आपके साथ क्या होना है, कैसे होना है, उसमें क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या इवेंट्स हो सकते हैं, इट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो, या कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है ये उनको समझाना. द प्रोसीजर कितना कॉम्प्लेक्स है ये समझाना तो सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि ऑब्वियसली एज अ कॉमन मैन यू वोंट अंडरस्टैंड. अगर मैं बोलूँ कि यार मुझे तो ये काटना है ये जोड़ना है, आपको समझ में आएगा कि ठीक है ये हाथ काटेंगे और जोड़ देंगे, बट हाउ कॉम्प्लेक्स इट वुड बी, इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड. लेकिन हम उनको एटलीस्ट ये समझा सकते हैं कि क्या होना है कैसे होना है, सो दैट द चॉइस इज देयर्स, द डिसीजन इज देयर्स. तो उसमें होता यह है कि पेशेंट को जब एक बार वो इफ दे अंडरस्टैंड तो एटलीस्ट उनके लिए कुछ सरप्राइज नहीं होता. वंस दे नो थिंग्स फ्रॉम बिफोर इट वोंट सरप्राइज देम. Acha, one moment in your surgery where you think, yes, that's why I became a surgeon. Oh, when I saw this surgery of coloplasty for the first time, I saw it during my MCH. उसके पहले मुझे आइडिया भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है. First time when I saw it was like somehow I felt it is a beautiful surgery. Okay, so it was the surgery that you were attached to, या उसके बाद जो patient को आपने देखा वापस, you know, getting back on their routine and No, all? the surgery also and the outcome also, both. Yeah, the surgery also and the outcome also. Is there any surgery that made you cry? Cry? कभी रोए हो किसी surgery के बाद? No. Out of happiness maybe, not like No. the sadness. No. ये खुद overwhelming. It was so overwhelming. It was more जब सर्जरी खत्म हो जाती है उसके बाद you just want to go and rest. Okay. There is no laughing, no crying. Okay. Because से मैं आपको बोलूं कि आप कितने देर पढ़ सकते हो, अगर if I give you a book and I tell you read it with say attention, with focus, आप कितने देर एक बुक पढ़ सकते हो? Your most favorite book of yours, कितने देर पढ़ सकते हो? Maybe 2-3 hours आप पढ़ सकते हो, और आपने 2-3 घंटे पढ़ा, उसके बाद Sleep. अपने आप ही नींद आ जाएगी. And what if I tell you that you have read that book 20 times and again read it? एक भी बार नहीं पढ़ सकती दोबारा. नहीं पढ़ सकते ना. It is the same. आप तो 2-3 घंटे भी आप बता रहे हो जो, but with full focus I don't think you can read anything for more than 45 minutes to 1 hour maximum. Okay. With full focus. So surgery is like that. Like when you are doing a surgery, your focus is in the surgery completely. You cannot like There are no retakes. there are no retakes first of all,
एंड सेकेंडली आपका पूरा कंसंट्रेशन वहाँ होता है टू लाइटन अप द मूड. आप इधर उधर बातें बातें करते रहते हो बट आपका पूरा फोकस, एवरीथिंग, योर माइंड, योर हैंड, योर आईज, ऑल आर कंसंट्रेटेड देयर. एंड इमेजिन दैट सर्जरी गोइंग फॉर 7 hours. सो आप 7 घंटे बाद डू यू थिंक यू हैव टाइम टू गो क्राई, लाफ? नो. कहते हैं ना, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि. So both outcomes are Yeah. same for you. You have to just perform your You have to action. go your duty and then you go and sleep. That's all you want, just a sleep, because surgery is physically and mentally taxing, very taxing. So chai, coffee या कबीर सिंह before surgery? No, I'm not a big fan of चाय और कॉफी. दिन में एक बार या 2 बार लेता हूँ, that's it. So और we had a movie ना, कबीर सिंह हाँ, before yeah. the surgery. नहीं, भूख बहुत लगती है सर्जरी के बाद, बहुत भूख लगती है एंड नींद आती है बहुत बहुत ज़्यादा. लाइक जहाँ पे भी जगह मिले आई जस्ट गो एंड लाई डाउन. डोंट, बहुत कम, वेर एवर. व्हेन आई एम सिटिंग ऑल्सो आई विल सिट इन अ पोस्चर वेयर आई एम हाफ रिक्लाइनिंग because it becomes very mentally taxing for me. I don't know for others. Of For course me, it is, because you cannot, just laze around during a surgery. There is no Yeah. scope for that. yeah, and that even the smallest surgery, even if I do the smallest surgery जो 1 घंटे में खत्म हो गई या आधे घंटे में खत्म हो गई, उसके बाद also I feel like I'm mentally tired, like I need to relax somewhere, maybe talk to someone or whatever, something apart from this hospital या surgery. कुछ भी बात कर लो, कुछ भी हंसी मजाक कर लो, like that. Do you think patients remember you after, like 10 years or 5 years कि इन डॉक्टर ने मेरे पे सर्जरी करी थी? They have that bond. I don't know how many, but yeah, a few patients, yes, they still sometimes call from Kolkata and from Tamil Nadu. A few people, yes, they are there who call me, but then I tell them I'm not there anymore. So How do you feel about that call when someone remembers you, like कि डॉक्टर साहब 5 साल पहले आपने ऐसे करा था, मेरी जान बचाई थी, आपकी वजह से ये and thank you. it is definitely a very good feeling. It is definitely a very good feeling, but more than that, since you are so much worked up in your life and things are going in at such a pace, आपको बस ये लगता है कि ठीक है, ये आप बताइए क्या है, कोई इशू है आप बताइए, एंड देन व्हाट वी ट्राई टू डू विथ आवर बेस्ट इंटेंशन कि आपको सही गाइड कर दें. सिंस आई एम नॉट प्रेजेंट, सो आई विल एटलीस्ट गाइड यू कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. और अगर ऐसे ही बात करने के लिए फ़ोन करते हैं या उनको कुछ हैप्पीनेस या सैडनेस शेयर करना है तो या डेफिनेटली शेयर. ऐसे नहीं लगता आपको मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है? नहीं, That's अभी तक तो नहीं लगता है, मतलब ऐसे कॉल्स में. हाँ, टाइम वेस्ट हो रहा है कुछ चीज़ों में लगता है, तो दैट वी डिस्करेज फ्रॉम आवर साइड कि ऐसे नहीं करना है. okay. अगर आप आज डॉक्टर नहीं होते तो आप क्या होते? I have no idea. I wanted to join the army at one point of time when I was in army school, but yeah, that's all. I don't know whether I would have made it or not. Advice would you give to young surgeons who are going to, who are thinking of surgery or thinking of joining this profession? Or to young Alok, like from 10 years back, what advice, looking from here, what advice would you give them? Advice is कि थोड़ा और पढ़ लेता शायद, तो थोड़ा और बेटर नॉलेज होती. Okay. I think knowledge तो ऐसी चीज़ है ना जो कभी थोड़ा और you cannot define. Yeah, but then How much ever you dive, it's always less. Yeah, but कभी कभार ऐसा लगता है कि यार उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मौज मस्ती कर ली थी, थोड़ा और पढ़ लेना चाहिए था. Yeah. And what keeps you going in, such hectic routine? What keeps you going? Because that is the only thing I know. What could be a better motivator? Okay. I thought maybe you would say कि लोगों के चेहरों पे ऐसे दिखता है, मैं किसी की जान बचा पाता हूँ, हर दिन मुझे कुदरत से मौका मिलता है. My whole existence is a doctor.
and that is the only thing I know. This um, like this profession, it has such a long learning curve कि it takes everything from you. आपको सिर्फ एक डॉक्टर की डिग्री दे देता है. अगर मेरे नाम के आगे से डॉक्टर निकाल लिया जाए, then I am good for nothing. What could be a better motivator? कि मुझे यही आता है, यही मुझे करना है, and this is what gives my life a purpose, a meaning, a sense of like I exist, yes, with this purpose. So यही करना है, और क्या करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर एनलाइटनिंग वर्ड्स. आई गेस इस पॉडकास्ट को देखने के बाद ऑडियंस कैन रिलेट और रेजोनेट मोर विद द सर्जन्स वर्ल्ड ऑल्सो, और जो मिसट्रस्ट एक पेशेंट और एक डॉक्टर के बीच में है, उस गैप को हम थोड़ा बहुत ब्रिज कर पाए हों. सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड स्पेयरिंग योर टाइम. Thank you, ma'am. Thank you. As we wrap today's episode of Mindful, I want to take a moment to let this conversation sink in. We often think of surgery as something mechanical: cut, fix, stitch, move on. But as you heard today, behind every clinical decision is a person, a surgeon who must weigh the risks, calm the fears, and most importantly, communicate with compassion. Dr. Alok Dubey reminded us that medicine is not just about knowing what to do, it's about helping others believe in the process. And in times of crisis, that belief can be just as healing as the procedure itself. If today's conversation resonated with you, if it reminded you of a doctor who stood by you, or a moment of doubt that turned into clarity, I will love to hear your story. Don't forget to follow, rate, and share Mindful by Dr. Taruna with someone who might need this today. Until next time, stay curious, stay grounded, and stay mindful. Thank you.